Everybody, welcome to this video on the chapter of chemical kinetics. The first question of this chapter is the reaction that occurs in a breath analyzer, a device used to determine the alcohol level in a person's bloodstream is 2 times K2Cr2O7 plus 8H2SO4 plus 3 times C2H6O gives you 2 times Cr2SO4 thrice plus 3 times C2H4O2 plus 2K2SO4 plus 11H2O. If the rate of appearance of Cr2SO4 thrice is 2.67 mole per minute at a particular time, then the rate of disappearance of C2H6O at the same time is. So students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will have to use the concept that जो भी कोएफिशिएंट होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, it comes in the denominator in the rate equation. For example, यहाँ पे C2H6O का कोएफिशिएंट is 3 and therefore rate equation will be equal to -1/3 times dC2H6O by dt, and guys this will be equal to +1/2 times dCr2SO4 thrice by dt. So this is the main concept of this question. Let's observe the solution in the next slide. Yes students, so they have given us the value of rate of appearance of Cr2SO4 thrice, which means they have given us the value of dCr2SO4 thrice by dt, and this is equal to 2.67 mole per minute. अब स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ C2H6O is 3, we will write the rate equation as -1/3 dC2H6O by dt, and this will be equal to +1/2 dCr2SO4 thrice by dt. स्टूडेंट्स, जब हम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, वी विल गेट द इक्वेशन एज dC2H6O by dt is equal to 3/2 times dCr2SO4 thrice by dt. स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने माइनस साइन इग्नोर किया है बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द वैल्यू, एंड इसको सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू एज 4 मोल पर मिनट. So with this we have completed this first question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the second question of this chapter is PCl5 gas gives you PCl3 gas plus chlorine gas. In the above first order reaction, the concentration of PCl5 reduces from initial concentration 50 mole per liter to 10 mole per liter in 120 minutes at 300 Kelvin. The rate constant for the reaction at 300 Kelvin is x into 10 raised to -2 per minute. The value of x is. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will have to use a master equation of first order reaction. This equation is K is equal to 2.303 upon T log of A0 upon A to the base 10. guys, यहाँ पे टाइम दिया है as 120 minutes. A0 will be 50 mole per liter which is the initial concentration, and guys A will be 10 mole per liter which is the concentration at time t. So guys, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको रेट कांस्टेंट k की वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट्स ऑब्जर्व दिस सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो, द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A0 अपॉन A टू द बेस 10. स्टूडेंट्स, यहां पे बस इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो A0 अपॉन A में डिनोमिनेटर A है, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 एट टाइम t इक्वल टू 120 मिनट्स. तो स्टूडेंट्स, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. t के जगह 120 मिनट्स, A0 के जगह 50 मोल पर मिनट, एंड इन प्लेस ऑफ A 10 मोल पर मिनट. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल ऑफ दीज वैल्यूज एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ log ऑफ 5 विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, आपका फाइनल आंसर आ जाता है 1.3413 इंटू 10 raised to -2 per minute. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the third question of this chapter is the reaction 2A plus B2 gives you 2AB is an elementary reaction. For a certain quantity of reactants, if the volume of the reaction vessel is reduced by a factor of 3, the rate of the reaction increases by a factor of. Students, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एलिमेंट्री रिएक्शन. गाइस, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, जो यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट होते हैं इन द इक्वेशन, दे बिकम द पावर इन द रेट इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रिएक्टेंट्स दिए हैं 2A plus 1B2, एंड देयरफॉर द रेट इक्वेशन विल बी इक्वल टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होल स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 raised to 1.
तो गैस आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो a एंड B2 का कोइफिशिएंट है वही पावर हो चुका है इन द रेट इक्वेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स इट हैज़ बीन गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द वेसल हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3। अब गैस अगर आप वेसल के वॉल्यूम को 3 टाइम्स कम कर दोगे तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगा वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। गैस दिस इज बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्शन वेसल के वॉल्यूम को 3 टाइम्स कम करने की वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब गैस हमें रेट इक्वेशन ऑलरेडी मिल चुका है, उसमें हमें फैक्टर ऑफ 3 मल्टीप्लाई करना है, इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ सॉल्यूशन में ऑब्जर्व कर सकते हो, द इक्वेशन इज 2a plus b2 gives you 2ab and therefore the rate of the reaction is equal to k times concentration of a whole square into concentration of b2 raised to 1। कैसे मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, बिकॉज दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, यहाँ पे जो a एंड b2 के कोइफिशिएंट है इन द इक्वेशन वही उसके पावर हो जाते हैं इन द रेट इक्वेशन। अब गैस जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था, इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगा इट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। अब गैस क्योंकि यहाँ पे ए का स्क्वायर है इन द रेट इक्वेशन, तो 3 का स्क्वायर विल बिकम 9 एंड गैस B2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9 into 3 which is equal to 27 times. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the fourth question of this chapter is, for the reaction 2a plus 3b plus 3 by 2c gives you 3p, which statement is correct? Students, to solve this question we will again have to use the concept कि जो कोएफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, दे कम इन द डिनोमिनेटर इन द रेट इक्वेशन। सो गैस यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू -1/2 dA by dt which is also equal to -1/3 dB by dt which is also equal to -1/3/2 times dC by dt। तो गैस आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो भी कोएफिशिएंट है ए बी एंड सी के उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स वी विल रिप्लेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी बाय द मोल्स ऑफ ए बी एंड सी। इसके बाद हमें इक्वेशन मिल जाएगा -1/2 टाइम्स डी एन ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू -1/3 टाइम्स डी एन बी बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू -1/3/2 टाइम्स डी एन सी बाई डी टी। अब गैस हम तीनों पार्ट्स में माइनस साइन को कैंसिल कर देंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई ऑल द 3 पार्ट्स बाय नंबर 2। इससे गैस हमें ऑप्शन डी मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स डी एन बी बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स डी एन सी बाई डी टी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes students, the fifth question of this chapter is, for the reaction twice H2 plus twice NO gives you N2 plus twice H2O, the observed rate expression is, rate is equal to Kf times concentration of NO whole square into concentration of H2. The rate expression for the reverse reaction is। Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will have to use two equations. The first equation is equilibrium constant K is equal to K forward upon K backward, and guys one more equation of equilibrium constant which is the concentration of products upon concentration of reactants with the coefficients in the equation as their power। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन दिया है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी concentration of right hand side upon concentration of left hand side with the numbers in the reaction as the power। So guys, for this chemical reaction, equilibrium constant K will be equal to concentration of N2 into concentration of H2O whole square divided by concentration of H2 whole square into concentration of NO whole square। So guys, ये दो इक्वेशन हमें यूज करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Let's observe this in the solution in the next slide। Yes students, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, equilibrium constant K is equal to Kf upon Kb।
Students, Kf is the rate constant for the forward reaction and Kb is the rate constant for the backward reaction. Guys, this is the first equation and इसके अलावा हमें ये भी concept use करना है that equilibrium constant K is also equal to concentration of products upon concentration of reactants with the coefficients in the chemical reaction as their power. तो गैस ये दोनों कंसेप्ट यूज करके आपको ओवरऑल इक्वेशन मिल जाएगा के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे और इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वायर divided by concentration of H2. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the sixth question of this chapter is NO2 required for a reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation 2 times N2O5 gives you 4NO2 plus Cl2. If initial concentration of N2O5 is 3 mole per liter and it is 2.75 mole per liter after 30 minutes, the rate of formation of NO2 is. So students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T. गाइस, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको बस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है एंड यू हैव टू डिवाइड दिस बाय टाइम. Students, the initial concentration of N2O5 is 3 and its concentration after some time is 2.75. तो गैस इसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 2.75 माइनस 3 एंड नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस बाय टाइम विच इज 30 मिनट्स. तो गैस इससे आपको डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T की वैल्यू मिल जाएगी. उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे को सेम कंसेप्ट यूज करना है. जो भी नंबर्स होते हैं इन द केमिकल रिएक्शन हमें उनको लिखना है इन द डिनोमिनेटर इन द रेट इक्वेशन. सो गैस द इक्वेशन विल बिकम -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T is equal to plus 1/4 times delta NO2 by delta T. Guys, इस इक्वेशन को यूज करके हमें डेल्टा NO2 by delta T की वैल्यू मिल जाएगी and this will be our final answer. So let's observe this in the solution in the next slide. Yes students, तो जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो the rate equation is -1/2 times delta N2O5 by delta T is equal to plus 1/4 times डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T. कैस यहाँ पे हमें डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T की वैल्यू निकालनी है एंड दिस विल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम. तो आप यहाँ देख सकते हो दैट दिस इज इक्वल टू 2.75 माइनस 3 डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 30 मिनट्स. कैसे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T मिल जाएगा एंड देन वंस वी सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द मेन इक्वेशन यू विल गेट द आंसर ऑफ डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T. Guys, this answer comes out as 1.667 into 10 raised to minus 2 mole per liter per minute. स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है. डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T की जो वैल्यू है वो प्लस में आएगी. दिस इज बिकॉज NO2 इज अ प्रोडक्ट एंड विद टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है. देयरफॉर यहाँ पे आंसर विल बी प्लस 1.667 into 10 raised to minus 2 mole per liter per minute. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is for a reaction scheme A gives you B and then B gives you C. If the rate of formation of B is said to be 0, then the concentration of B is given by. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will have to observe the equation of dB by dt. Students, यहाँ B is being formed from A and then B is actually also going to disappear and form C. तो guys, ऐसे केस में dB by dt will be equal to K1 times concentration of A minus K2 times concentration of B. guys, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो B का फॉर्मेशन होगा it will be because of A and therefore dB by dt is equal to K1 times concentration of A and guys उसके बाद B is also going to disappear into C. इसीलिए आप इक्वेशन में आगे लिखते हो -K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. तो गैस आपको फिर से बता देता हूं dB by dt विल बी इक्वल टू K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. गैस ये हमारा मेन इक्वेशन होगा
एंड वी हैव टू पुट दिस इक्वेशन एज इक्वल टू 0 बिकॉज उन्होंने कहा है दैट द ओवरऑल रेट ऑफ बी इज एक्चुअली 0. तो गैस इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मिल जाएगा. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस पीपल, तो आप यहां देख सकते हो दैट dB by dt हैज बीन गिवन एज इक्वल टू K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. स्टूडेंट्स, B का जो फॉर्मेशन है इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड गाइस B का जो डिसअपियरेंस है इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब स्टूडेंट्स, जब B फॉर्म होगा इट विल डिपेंड ऑन K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड गाइस जो B डिसअपियर होके C बनने वाला है इट विल डिपेंड ऑन K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. तो ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगा dB by dt इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. अब स्टूडेंट्स, ये जो dB by dt है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड देयरफॉर आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस आपको B का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा एज इक्वल टू K1 अपॉन K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. So this is our final answer, and with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 8th question of this chapter is, for an elementary chemical reaction A2 in a reversible way gives you 2A, the expression for dA by dt is. Students, आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है एंड गाइस ऐसे केस में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. गाइस यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इट विल बिकम इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2. सिमिलरली गाइस जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है इट विल बिकम K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होल स्क्वायर. तो गाइस ये दोनों चीज़ें जब हम यूज़ करेंगे तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस K-1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होल स्क्वायर. गाइज मैं सिंपली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कर रहा हूँ और इससे मेरे को ओवरऑल रेट की वैल्यू मिल रही है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज +1 अपॉन 2 टाइम्स dA by dt. गाइज हमें ऑलरेडी पता है कि जो नंबर्स होते हैं इन द केमिकल रिएक्शन उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं इन द रेट इक्वेशन. तो गैस पहले हमने देखा दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होल स्क्वायर. एंड गैस बाद में हमने देखा दैट दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू +1 अपॉन 2 टाइम्स dA by dt. तो गैस जब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो ओवरऑल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड. गाइज जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इट विल डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट एंड इसीलिए R फॉरवर्ड की जगह आप लिख सकते हो K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 एंड गाइज जो R बैकवर्ड है इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. इसीलिए गाइज आप R बैकवर्ड की जगह लिख सकते हो K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होल स्क्वायर. तो गैस इससे आपको ओवरऑल रेट R मिल जाएगा एज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होल स्क्वायर. इसके अलावा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन R इज ऑल्सो इक्वल टू +1 अपॉन 2 टाइम्स dA by dt. इसको आप नीचे वाले इक्वेशन में देख सकते हो. गैस जब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे तो आपको dA by dt का आंसर मिल जाएगा एज इक्वल टू 2K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस 2K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होल स्क्वायर. So this is our final answer, and with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 9th question of this chapter is, for a first order reaction, the ratio of the time for 75% completion of a reaction to the time for 50% completion is. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मास्टर इक्वेशन यूज करेंगे. K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log of A0 अपॉन A टू द बेस 10. स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होता है इट इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T. इसका मतलब स्टूडेंट्स, जब 75% कंप्लीशन होगा देन वी विल टेक द वैल्यू ऑफ A एज 25% ऑफ A0 बिकॉज 25% इज रिमेनिंग. सिमिलरली स्टूडेंट्स,
जब 50% कंप्लीशन होगा वी विल टेक द वैल्यू ऑफ ए एज 50% ऑफ ए नॉट बिकॉज 50% इज रिमेनिंग. So this is the main concept of this question. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes students, तो आप यहाँ observe कर सकते हो that for 50% completion K will be equal to 2.303 upon time taken for 50% completion into log of 100 upon 100 minus 50. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ए नॉट है उसका वैल्यू अगर हम 100 अज्यूम करते हैं तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा एट टाइम टी 50% इट विल बी 100 माइनस 50 बिकॉज दैट मच अमाउंट विल रिमेन एट टाइम टी. Similarly students, for 75% completion the equation becomes K is equal to 2.303 upon time of 75% completion into log of 100 upon 100 minus 75. स्टूडेंट्स फिर से हम ए नॉट की वैल्यू को 100 अज्यूम कर रहे हैं तो ऐसे केस में ए की वैल्यू विल बिकम 100 माइनस 75 बिकॉज दैट इज द अमाउंट विच विल बी रिमेनिंग. गाइस इन दोनों इक्वेशंस में के की वैल्यू विल बी सेम एंड जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें इजीली रेशो मिल जाएगा ऑफ टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन अपॉन टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन एज इक्वल टू 2/1. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is the first order rate constant for the decomposition of CaCO3 at 700 Kelvin is 6.36 into 10 raised to minus 3 per second and activation energy is 209 kilojoule per mole. Its rate constant in per second at 600 Kelvin is x into 10 raised to minus 6. What is the value of x? सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल हैव टू यूज अर्हेनियस इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज log of k2 upon k1 to the base 10 which is equal to EA upon 2.303 R into inside the bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2. Students, in this equation we have to take temperature in Kelvin and guys EA का value will be taken in joules and guys the value of R will be taken as 8.314 joule per Kelvin per mole. So guys ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो दे हैव यूज्ड द अर्हेनियस इक्वेशन एंड दे हैव रिटन दिस इक्वेशन इन अ रिवर्स मैनर. गाइस द इक्वेशन इज log of k1 upon k2 to the base 10. This is equal to EA upon 2.303 R into inside the bracket 1 upon T2 minus 1 upon T1. Students, यहाँ पे T1 temperature is 700 Kelvin, T2 temperature is 600 Kelvin. EA has been given as 209 kilojoule per mole, जिसको हम लिख देंगे 209 into 10 raised to 3 joule per mole. And guys R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. Guys ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको इजीली x का आंसर मिल जाएगा as equal to 16. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is for the first order reaction A gives you 2B. 1 mole of reactant A gives 0.2 moles of B after 100 minutes. The half-life of the reaction is. स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको सीखने में बहुत मज़ा आएगा. गाइस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया है A gives you 2B. अब स्टूडेंट्स A के स्टार्टिंग नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1 एंड गाइस B के स्टार्टिंग नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0. गाइस आफ्टर सम टाइम T A के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1 माइनस एक्स एंड गाइस B के मोल्स हो जाएंगे 2x. अब गाइस ये जो 2x है इसका वैल्यू दिया है एज 0.2 मोल्स ऑफ B. तो गैस इससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा एज 0.1 एंड इसीलिए स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिमेनिंग होंगे दे विल बी 1 माइनस एक्स विच विल बी 1 माइनस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.9. तो गैस हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A विल बी 1 एंड गैस आफ्टर 100 मिनट्स द मोल्स ऑफ A विच आर रिमेनिंग विल बी 0.9. इसके बाद स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मास्टर इक्वेशन यूज करेंगे. K is equal to 2.303 upon T log of A0 upon A to the base 10. स्टूडेंट्स यहाँ A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसके जगह हम 1 मोल लिख देंगे एंड गाइस A इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग एट टाइम T.
तो गैस हम A के जगह पे 0.9 मोल्स लिख देंगे. सो आफ्टर डूइंग दिस सब्सटीट्यूशन हमें K की वैल्यू मिल जाएगी. एंड गाइस आफ्टर वी फाइंड द रेट कांस्टेंट हमें हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन यूज करना है. स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K. तो गैस इस फॉर्मूला को यूज करके हमें हाफ लाइफ की वैल्यू मिल जाएगी. लेट्स ऑब्जर्व ऑल ऑफ दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, द केमिकल रिएक्शन इज A gives you 2B. Students, number of moles of A initially present are 1 mole and those of B are 0 moles. Guys, after time t, A के number of moles will become 1 minus x and guys, B के number of moles will become 2x. अब स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें 100 मिनट्स पे B के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 0.2 एंड इसीलिए इक्वेशन बन जाता है 2x इज इक्वल टू 0.2. गाइस, इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी एज 0.1 एंड पीपल ऑन बैक सब्सटीट्यूशन आपको A के जो नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग है एट टाइम t इज इक्वल टू 100 मिनट्स वो मिल जाएंगे. गाइस, दिस वैल्यू विल बी 1 माइनस x यानी कि 1 माइनस 0.1 एंड देयरफॉर इट विल बी 0.9. तो गाइस हम ऐसा बोल सकते हैं कि A के नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली प्रेजेंट आर 1 मोल एंड आफ्टर 100 मिनट्स A के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट विल बी 0.9. इसके बाद स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मास्टर इक्वेशन यूज करेंगे. K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A0 अपॉन A टू द बेस 10. गाइस, इस इक्वेशन में हम टाइम T के जगह यूज कर देंगे 100 मिनट्स. इन प्लेस ऑफ A0 we will write initial number of moles which is 1 mole and guys in place of A we will write 0.9 moles. This is the number of moles remaining after time t is equal to 100 minutes. Guys, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको K की वैल्यू मिल जाएगी. Guys, once you find the rate constant K, उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे. Guys, this formula is half life is equal to 0.693 अपॉन K. इसमें गाइस हम K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इससे हमें हाफ लाइफ का आंसर मिल जाएगा एज अप्रॉक्सीमेटली 656 मिनट्स. So with this we have completed this question as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the 12th question of this chapter is, for a reaction of order n, the unit of the rate constant K is. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will use the master equation rate is equal to K into concentration of A whole raised to n. Guys, हम whole raised to n इसीलिए कर रहे हैं because this is a reaction of order n. इसके बाद स्टूडेंट्स हम रेट का यूनिट सब्स्टिट्यूट करेंगे एज मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड गाइस हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का यूनिट सब्स्टिट्यूट करेंगे एज मोल पर लीटर. गाइस, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको रेट कांस्टेंट के का मास्टर यूनिट मिल जाएगा एज मोल रेज टू 1 माइनस एन इंटू लीटर रेज टू एन माइनस 1 इंटू पर सेकेंड. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, यहाँ rate of chemical reaction has been written as equal to K into concentration of A whole raised to n. इसके बाद स्टूडेंट्स हम रेट के जगह पे यूनिट लिख देंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड गाइस इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A वी विल राइट मोल पर लीटर. गाइस, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको रेट कांस्टेंट K का यूनिट मिल जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल रेज टू n पर लीटर रेज टू n. Guys, आफ्टर डूइंग बेसिक कैलकुलेशन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मोल रेज टू 1 माइनस एन इंटू लीटर रेज टू एन माइनस 1 इंटू पर सेकेंड. सो गाइस, दिस इज द मास्टर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K. गाइस, इसको आप मेमोराइज कर सकते हो बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इवन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो गाइस, अगर आपने इस मास्टर इक्वेशन को याद कर लिया तो अगर जीरो ऑर्डर के बारे में पूछा है तो आपको बस n इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है. एंड सिमिलरली उन्होंने अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा है तो इस इक्वेशन में आप n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, द 13th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज द फॉलोइंग डेटा वॉज obtained फॉर केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो एट 975 Kelvin. Twice NO plus twice H2 gives you N2 plus twice H2O.
स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टेबल में वैल्यूज दिए हैं इनको यूज करके वी नीड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO। गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो दैट इन द फर्स्ट टू रोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। गाइस, आप यहाँ देख सकते हो दैट इन द फर्स्ट टू रोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 8 इंटू 10⁻⁵ और ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ऑन द अदर हैंड गाइस, NO का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट हैज बिकम 3 टाइम्स। गाइस, फर्स्ट रो में NO का कॉन्सेंट्रेशन इज 8 इंटू 10⁻⁵ एंड इन द सेकेंड रो इट बिकम्स 24 इंटू 10⁻⁵। तो गाइस, हम ऐसा बोल सकते हैं दैट हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड NO का कॉन्सेंट्रेशन हैज बिकम 3 टाइम्स। अब गाइस, ऐसे केस में जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है इट हैज ऑल्सो बिकम 3 टाइम्स। आप लास्ट कॉलम में ऑब्जर्व कर सकते हो दैट इन द फर्स्ट रो rate of chemical reaction is 7 into 10⁻⁹ and then in the second row it becomes 2.1 into 10⁻⁸। तो गाइज, इन कंक्लूजन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है एंड जब NO का कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 3 टाइम्स तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल ऑल्सो बिकम 3 टाइम्स। अब गाइज, अगर NO का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स करने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 3 टाइम्स हो रहा है तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज 1। तो गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज 1। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes students, in the 14th question of this chapter, we need to observe 3 graphs and then find the order of chemical reaction. Let's start with the first graph. Guys, in this first graph, we have a graph of rate versus time. Students, आप यहाँ observe कर सकते हो that this graph is a horizontal line. इसका मतलब students, as time increases, rate of chemical reaction remains constant. अब स्टूडेंट्स, हमें पता है दैट फॉर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन द रेट इक्वेशन इज रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू 0। गाइस, जैसे जैसे A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डज नॉट चेंज बिकॉज इस इक्वेशन में A का पावर इज 0। सो गाइस, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्राफ है इट रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन बिकॉज जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, लेकिन ऐसे केस में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं होता बिकॉज दिस इज अ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। सो गाइज, आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो दैट वेन एवर रेट वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन इट रिप्रेजेंट्स अ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। नाउ गाइज, लेट्स ऑब्जर्व द सेकेंड ग्राफ। स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड ग्राफ वी हैव अ ग्राफ ऑफ हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ग्राफ में ऑब्जर्व कर सकते हो that as initial concentration increases, half-life also increases and it is a straight line. Guys, हमें पता है that for a zero order chemical reaction, the formula for half-life is equal to A0 upon 2K. तो guys, हम ऐसा बोल सकते हैं that for zero order chemical reaction, half-life is directly proportional to A0. In fact, guys, zero order chemical reaction is the only chemical reaction जिसमें हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ बी है इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर। सो गाइज, इन कंक्लूजन, वेन एवर रेट वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन इट रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर एंड वेन एवर हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज अ स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड्स इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर। नाउ लेट्स ऑब्जर्व द थर्ड ग्राफ। गाइज, आप यहाँ देख सकते हो दैट इन ग्राफ E we have a graph of rate versus concentration. Guys, in this graph, we have direct proportionality between rate and concentration and it is a straight line. तो guys, जैसे जैसे concentration increase होता है, rate of chemical reaction is also increasing and this graph is a straight line. So guys, इसका मतलब ये है कि जो graph E है, it actually represents first order. Students, first order chemical reaction में the equation is रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू 1। अब गाइस, बिकॉज पावर 1 है इसीलिए गाइस ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है एंड बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देयरफॉर दिस ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड्स। सो गाइस, इन कंक्लूजन, वेन एवर रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड्स इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑर्डर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन
Let's move ahead to the next slide. Yes, students, the 15th question of this chapter is, for the reaction AA plus BB gives you CC plus DD, the plot of log of K versus 1 upon T is given below. तो गैस यहाँ पे ग्राफ दिया है of log of K versus 1 upon T and it is a straight line going downwards. The temperature at which the rate constant of the reaction is 10 raised to minus 4 per second is. इसके अलावा स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो गिवन दैट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10 रेज्ड टू माइनस 5 पर सेकेंड एट 500 केल्विन. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन. गाइस अर्हेनियस इक्वेशन इज k इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. गाइस इसी इक्वेशन को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हो एज log of k इज इक्वल टू log of a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. तो गैस अगर आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि वेन एवर यू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ के वर्सेस 1 अपॉन टी तो उस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर. इसका मतलब स्टूडेंट्स इस ग्राफ में जो स्लोप का वैल्यू दिया है एज 10,000 दिस विल बी इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर. सो गैस इस इक्वेशन को यूज करके हमें ई ए की वैल्यू मिल जाएगी एंड आफ्टर दिस वी हैव टू यूज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन. दिस इक्वेशन विल बी log of k2 upon k1 to the base 10 is equal to ea upon 2.303 r into inside the bracket 1 upon t1 minus 1 upon t2. सो गैस इस इक्वेशन को यूज करके हमें टेम्परेचर मिल जाएगा एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. So let's observe all of this in the solution in the next slide. Yes students, आप यहाँ पे observe कर सकते हो that the logarithmic form of Arrhenius equation is log of k is equal to log of a minus ea upon 2.303 rt. So students, whenever you draw a graph of log of k versus 1 upon t, तो इसका slope हो जाएगा ea upon 2.303 r. Guys, this value in this question has been given as 10,000. इसके बाद स्टूडेंट्स हमें मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन यूज करना है. दिस इक्वेशन इज log ऑफ k2 अपॉन k1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2. स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है. लेफ्ट साइड में यू नीड टू हैव log ऑफ k2 अपॉन k1 टू द बेस 10. इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ई ए अपॉन 2.303 आर है उसकी वैल्यू होगी स्लोप ऑफ द ग्राफ विच इज इक्वल टू 10,000. T1 टेम्परेचर इज 500 केल्विन, K1 विल बी 10 रेज टू माइनस 5, K2 विल बी 10 रेज टू माइनस 4 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T2. सो गाइस आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट द आंसर ऑफ T2 एज 526.3 केल्विन. सो गाइस इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, the 16th question of this chapter is, for a chemical reaction, the following table has been given. What is the value of x and y in this table? So students, आप यहाँ observe कर सकते हो that in this table, concentration of A and B have been given and along with this, the rate of chemical reaction has also been given. अब गैस इस टेबल को यूज करके पहले हमें ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू A and B. So students, आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो that in the first two rows, when the concentration of B is doubled and concentration of A remains same, the rate of chemical reaction has become 4 times. Guys, आप देख सकते हो that in the first two rows, when the concentration of B goes from 0.1 to 0.2, the rate of chemical reaction goes from 6 into 10 raised to minus 3 to 2.4 into 10 raised to minus 2. तो guys हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट टू रोज में जब आप A को सेम रखते हो एंड जब आप B को डबल करते हो तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्चुअली बिकम्स 4 टाइम्स. इसका मतलब स्टूडेंट्स द ऑर्डर ऑफ B इन दिस केमिकल रिएक्शन विल बी 2. सिमिलरली गाइस जब आप फर्स्ट एंड थर्ड रो को ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट एंड थर्ड रो में A हैज बिकम 2 टाइम्स, B विल रिमेन सेम एंड गाइस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज डबल्ड. तो गैस हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड रो को कंपेयर करोगे तो व्हेन B रिमेन्स कांस्टेंट एंड व्हेन A इज डबल्ड, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो डबल्स. इसका मतलब स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इज 1.
तो गैस यहाँ पे ओवरऑल रेट इक्वेशन हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी होल स्क्वायर। फिर गैस हम इस इक्वेशन को यूज करके इजीली एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस अगर आप सेकेंड एंड फोर्थ रो को कंपेयर करोगे तो सेकेंड एंड फोर्थ रो में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिमेन्स सेम एंड गाइस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हमें कितने टाइम्स करना पड़ेगा ताकि रेट बिकम्स 3 टाइम्स। अब गाइस हमें पता है दैट पावर ऑफ ए इन द रेट इक्वेशन इज 1, तो इसीलिए अगर आपको रेट को 3 टाइम्स करना है तो आपको ए को भी 3 टाइम्स करना होगा एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 0.3। गाइस मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आप सेकेंड एंड फोर्थ रो को कंपेयर करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिमेन सेम एंड गाइस रेट हैज बिकम 3 टाइम्स। अब गाइस क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज 1 तो यहां पे हमें ए को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि ये रेट का जो चेंज है वो अचीव हो पाए। सो 3 टाइम्स ऑफ 0.1 इज 0.3 एंड इसीलिए स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0.3। अब गाइस एक बार आपको x की वैल्यू मिल गई तो उसके बाद आप फोर्थ एंड फिफ्थ रो को कंपेयर कर सकते हो। गाइस इन फोर्थ एंड फिफ्थ रो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a विल रिमेन सेम एज 0.3 एंड गाइस हमें यह चेक करना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b को कितने टाइम्स करना पड़ेगा ताकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ईजी है कि आपको y को जो है वो 0.2 का डबल करना पड़ेगा ताकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। दिस इज बिकॉज द पावर ऑफ b इन द रेट इक्वेशन इज 2। तो गाइस हम ऐसा बोल सकते हैं कि y का वैल्यू विल बी डबल ऑफ 0.2 विच इज 0.4। सो इन कंक्लूजन गाइस आपको हर एक रो को कंपेयर करना है और आपको पहले ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालना है एंड उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये चेक करना है कि कौन से रिएक्टेंट को कितने टाइम्स करना पड़ेगा ताकि रेट का जो चेंज है वो अचीव हो पाए। सो गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes students, the next question of this chapter is decomposition of X exhibits a rate constant of 0.05 micrograms per year. How many years are required for the decomposition of 5 micrograms of X into 2.5 micrograms? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख के पता करना होगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स द रेट कांस्टेंट इज 0.05 माइक्रोग्राम्स पर ईयर। So students, this rate constant is in the format of concentration upon time. इसका मतलब गाइस यहाँ rate constant होगा of zero order chemical reaction. Students, zero order chemical reaction में rate constant का unit होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम और यहाँ पे गैस उसी फॉर्मेट में दिया है। सो गैस अभी हमें पता चल गया है दैट दिस इज अ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन एंड इसीलिए अभी हम हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय हाफ लाइफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। इसमें गैस k की वैल्यू हम यूज करेंगे एज 0.05 एंड गैस ए नॉट की वैल्यू विल बी 5 माइक्रोग्राम। इसको यूज करके गैस हमें हाफ लाइफ की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। सो लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, बाय ऑब्जर्विंग द यूनिट ऑफ k इट इज क्लियर दैट द रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गाइस जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया था दैट whenever the unit of k is in the form of concentration upon time it is definitely a zero order reaction। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस फॉर्मूला इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। गाइस हम हाफ लाइफ का कंसेप्ट इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस द टाइम रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम 5 माइक्रोग्राम्स टू 2.5 माइक्रोग्राम्स। मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को एग्जैक्टली हाफ करने के लिए कितना टाइम लगेगा। गाइस इसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में वी विल सब्सटीट्यूट k एज 0.05 एंड वी विल सब्सटीट्यूट ए नॉट एज 5 माइक्रोग्राम्स। ये सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको हाफ लाइफ की वैल्यू मिल जाएगी एज 50 ईयर्स। सो गाइस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। Which of the following statements is true?
तो कैसे यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. द स्टेटमेंट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन. स्टूडेंट्स, यूजुअली अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. और गैस हमें पता है दैट इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देर आर 3 स्टेप्स: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन. गैस इसका लॉजिक बहुत सिंपल है गैस, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपका बस इनिशिएशन इंपॉर्टेंट होता है एंड आफ्टर इनिशिएशन इज डन इट डज नॉट मैटर कि आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, बिकॉज एक बार रिएक्शन इनिशिएट हो गया तो वो इजीली प्रोपोगेट होता रहेगा. So guys, because the rate of chemical reaction does not depend on the concentration of reactant, इसीलिए वो zero order reaction होगा. So in conclusion, एक zero order chemical reaction जो होता है वो usually free radical mechanism follow करता है and guys free radical mechanism जो है वो हमेशा multi step reaction होता है. So this is the learning of this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is a flask contains a mixture of compounds A and B. Both compounds decompose by first order kinetics. The half-life of A and B are 300 seconds and 180 seconds respectively. If the concentration of A and B are equal initially, the time required for the concentration of A to be 4 times that of B is. Students, इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व किया जा सकता है and let me explain that to you. Guys, अगर कंपाउंड A के 3 हाफ लाइफ कंप्लीट होते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम 1/8 टाइम्स. गाइस इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. गाइस व्हेन 3 हाफ लाइफ ऑफ ए आर कंप्लीट उसका कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ इंटू हाफ विच इज 1/8 टाइम्स. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर कंपाउंड बी के 5 हाफ लाइफ कंप्लीट होते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम 1/32 टाइम्स. गाइस इसका भी सेम लॉजिक है. आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स इट्स कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम half into half which is equal to 1/32 times. तो गैस हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड A है इट विल बिकम 1/8 टाइम्स आफ्टर 3 हाफ लाइफ एंड जो कंपाउंड B है इट विल बिकम 1/32 टाइम्स आफ्टर 5 हाफ लाइफ. अब गैस जो 1/8 नंबर है इट इज़ एग्जैक्टली 4 टाइम्स ऑफ 1/32 एंड इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि A का कॉन्सेंट्रेशन हैज़ बिकम 4 टाइम्स एज कंपेयर्ड टू B. गाइस ऐसा हम इसीलिए बोल पा रहे हैं बिकॉज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B वेर सेम. सो गाइस आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ A एंड आफ्टर 5 हाफ लाइफ ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हैज़ बिकम 4 टाइम्स इन कंपैरिजन टू B. अब गाइस यहाँ पे हम 3 हाफ लाइफ ऑफ A एंड 5 हाफ लाइफ ऑफ B ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. स्टूडेंट्स, आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ A the time elapsed would be 3 into 300 seconds which is equal to 900 seconds, and guys after 5 half life of B, time taken would be 5 into 180 seconds which is again equal to 900 seconds. So guys in conclusion, after 900 seconds 3 half life of A will be complete and 5 half life of B will be complete, and at this point A का concentration will become 4 times in comparison to B. इसीलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी 900 सेकेंड्स. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, the 20th question of this chapter is, observing this graph we need to find out the correct sequence for the order of the chemical reaction. Guys यहाँ पे उन्होंने हमें ग्राफ दिया है of log of rate versus log of concentration. Students हमें पता है that the master equation is rate is equal to K times concentration raised to N, where N is the order of chemical reaction. So guys इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will take logarithm on both sides and guys इससे इक्वेशन बन जाएगा log of rate is equal to log of K plus N times log of concentration. Guys इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज किया है that whatever is the power inside logarithm it comes outside. Guys इससे आपका इक्वेशन बन जाता है log of rate is equal to log of K plus N times log of concentration. स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा दैट इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ log of rate versus log of concentration, the slope of this graph will be the value of N, which is the order of chemical reaction. तो गैस इजी लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं
उन ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ n विच इज द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो गैस यहाँ पे आप काफ़ी इजीली देख सकते हो कि जो ग्राफ D है इट हैज़ मैक्सिमम स्लोप एंड इसीलिए उसका ऑर्डर विल बी मैक्सिमम. गैस यहाँ पे जो ग्राफ C है उसका स्लोप मिनिमम है एंड इसीलिए उसका ऑर्डर मिनिमम होगा. सो गैस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी D greater than B greater than A greater than C. So guys, the correct answer for this question will be option D. And with this, we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes, students, the 21st question of this chapter is again a theoretical question and it is quite interesting. The question is, which of the following graphs represents the variation of rate constant K with temperature for an endothermic reaction? Students, इसका ग्राफ समझने के लिए हमें अर्हेनियस इक्वेशन समझना होगा. द इक्वेशन इज K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. तो गाइस हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट K विल ऑलवेज वेरी एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर. अब गाइस यूजुअली किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो इससे ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर रेट कांस्टेंट विल एक्चुअली इंक्रीज. और गाइस ये जो इंक्रीज है ये इंक्रीज एक्सपोनेंशियल होगा इन अकॉर्डेंस विद अर्हेनियस इक्वेशन. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो दैट दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. गाइस कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है बिकॉज देर आर मोर कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. और गैस ये जो इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट K होगा इट विल बी एक्सपोनेंशियल इन नेचर बिकॉज अर्हेनियस इक्वेशन होता है K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. सो गैस देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जिसमें K इज इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर एंड दिस इंक्रीज इज एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, the next question of this chapter is, if the activation energy of a reaction is 80.9 kilojoule per mole, the fraction of molecules at 700 Kelvin having enough energy to react to form products is e raised to minus x. Find the value of x. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अर्हेनियस इक्वेशन को समझना होगा. अर्हेनियस इक्वेशन इज K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. सो गाइस ये जो फैक्टर है ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी यही होता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स. तो गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू निकालनी है एंड दीज आर द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दैट दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स. सो गाइस यहाँ पे ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया है, टेम्परेचर का भी वैल्यू दिया है and we will take the value of R as 8.31 joule per Kelvin per mole. So this is the main concept of this question. Let's observe the solution in the next slide. Yes students, Arrhenius equation is K is equal to A into e raised to minus EA upon RT. Students, जो factor A होता है it is total number of collisions and guys जो factor e raised to minus EA upon RT होता है it is fraction of effective collisions. इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पूछा था. देयरफॉर विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. गाइस इसमें ई ए का वैल्यू दिया है 80.9 किलो जूल्स पर मोल एंड देयरफॉर वी विल टेक इट एज 80.9 इंटू 1000. टेम्परेचर हैज बीन गिवन एज 700 केल्विन. द वैल्यू ऑफ आर विल बी 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल. एंड गाइस ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ई रेस टू माइनस 14. So with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 23rd question of this chapter is, an exothermic reaction X gives you Y has an activation energy of 30 kilojoule per mole. If the energy change delta E during the reaction is minus 20 kilojoule per mole, then the activation energy for the reverse reaction in kilojoule per mole is. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल कंसेप्ट यूज करना है. Net energy change in the reaction delta H is equal to EA forward minus EA backward. इसका मतलब स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन will give you the net energy change in the reaction which is delta H or delta E.
गैस यहाँ पे डेल्टा ई का वैल्यू दिया है -20 किलो जूल पर मोल एंड गैस ई ए फॉरवर्ड इज 30 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें ई ए बैकवर्ड की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, आप यहाँ ग्राफ में ऑब्जर्व कर सकते हो दैट द नेट एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन डेल्टा एच विल ऑलवेज बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन लिखा है डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज हमें ई ए बैकवर्ड की वैल्यू मिल जाएगी एज 50 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को आप लॉजिकली भी कर सकते हो। गाइस, वाइल मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आपको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑफ 30 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद नेट एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन इज -20। इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इन दिस ग्राफ, उस पॉइंट से लेके जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा जहाँ पे प्रोडक्ट है, इसके बीच में जो गैप होगा इट विल बी ऑफ 50 किलो जूल पर मोल। और गैस यही गैप होगा एक्टिवेशन एनर्जी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो गैस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल। आपको बस इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन याद रखना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes students, the last question of this video is the decomposition of phosphine on tungsten at low pressure is a first order reaction. It is because of. Students, this question is based on the concept of surface chemistry. Guys, हमने surface chemistry के chapter में देखा था that according to Freundlich, when you are operating at low pressure, rate of adsorption will be directly proportional to P raised to 1. And guys, when you are operating at high pressure, rate of adsorption will be proportional to P raised to 0. So students, हम ऐसा बोल सकते हैं that when you are operating at low pressure, the rate of adsorption will follow first order kinetics. And guys, when you are operating at high pressure, rate of adsorption will follow zero order kinetics. Guys, इसका reason बहुत simple है. Guys, when you are at low pressure, ज़्यादा adsorption अभी तक हुआ नहीं होगा. And guys, the amount of adsorption will be proportional to the surface area available for adsorption. इसका मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। सो गाइस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल। आई होप यू हैड अ लॉट ऑफ फन in this video as well. Till then, stay happy and keep smiling. I will see you in the next video.